Hello friends, so here in this session we are going to discuss about the sexual identity. How we can identify any person, sex, any sexual identity. To find out the sexual identification, in this video we are gonna discuss about. Okay, so see, before this in the ancient time, there there were only two sexual identity. The one is female and another is male. But nowadays it is very difficult to identify the sexuality of individual. It's very difficult. But here, after completion of this video, you will get some different from this video, and at the end of the session you will not have any kind of hesitation or suspension about this topic. Okay, you will easily find the sexuality of an individual, right? So if we talk about the sexual percentage, so basically it is divided into two forms. The one is called homosexual and the second one is called heterosexual. Homosexual means समलैंगिक, मीन्स एक समान लिंग वाले, एक समान लैंगिक वाले, तो उसको बोलते हैं समलैंगिक, मीन्स होमोसेक्सुअल. हेट्रोसेक्सुअल मीन्स विषम लैंगिक, मीन्स डिफरेंट इन सेक्स, लाइक डिफरेंट इन लिंग, और मीन्स अलग भिन्न भिन्न हो तो उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसेक्सुअल. In heterosexual, it's very simple to identify, like it's a normal human being action, like a natural behavior of a human being, like a male attracts to female and a female attracts to male. This is the natural behavior of a human being that come under heterosexual section. Okay, if we divide into two sections, homosexual and heterosexual. Heterosexual is a natural behavior of human being in which a male attracts to female and a female attracts to male. That's it. So in this case it's very simple to identify heterosexual. But in another case like homosexual, we get some confusion. Okay, but here we see one by one. The first one, if we talk about the percentage, see heterosexual percentage nowadays 97.7% in women and 97.4% we will find in man. Means heterosexual, that's a, I already have told, a simple and natural human being do. And homosexual only 0.8% in women and 1.6% in men. But in another case like bisexual and another sex, which we are going to talk about, the rest percent cover it, right? 1.4 in women, 0.9% in men. So see, the first one is known as lesbian. This one, lesbian means what? Means female attracts female, means one female is being attracted by another female. In that case we will say lesbian group, right? Means same structure, female to female क्या बोलेंगे, lesbian. And gay, male to male, means if male attracts male, male attracts male, means both attract together or each other. In that case we say gay. The third one is called as bisexual. In bisexual, like male can attract female or male anyone, and female can attract male or female anyone. For example, यदि देखते हैं एक छोटा सा कोई बच्चा लेते हैं, कोई एक छोटे से नन्हे बच्चे को देखता है, उसको गोद में उठा करके किस करने लगता है. What does it mean? Means he likes that baby. It does not mean we cannot find it like in a negative sense. हम उसको negative sense में नहीं निकाल सकते हैं. जैसे कोई सियाना अडल्ट आया और किसी बच्ची को उठाया गोद में और किस करने लगा. व्हाट डज इट मीन? मीन्स वो उसको पसंद करता है, बट नॉट इन द नेगेटिव सेंस. सो इन दैट केस वी विल से लाइक बायोसेक्सुअल. द फोर्थ वन इज ट्रांसजेंडर, जिसको हिंदी में हिजरा या किन्नर बोलते हैं. हम सभी काफ़ी अधिकतर देखते हैं ट्रेन्स में जब यात्रा करते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है. सी गाइज,
I really apologize with the behavior of the people with transgender. I think we should not do like that. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनको टीजिंग करते, दे स्टार्टेड टीजिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल दैट वी शुड नॉट do like that. We should also respect them equally as we give respect to the people like a normal human being. Okay, they are also a normal human being. We should pray the God that the God has made us a normal human being. तो हमें we in that's why I'm telling we should always respect them also. एक बड़ी विडंबना है इन दिनों. लोगों को देखना इनको क्या होता है, ट्रांसजेंडर को क्या करते हैं, वो पैसे देते हैं, बट nobody gives them like job, nobody take them as a service. कोई भी उनको जॉब के लिए नहीं रखता. ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए. तो ये एक इसमें इस तरीके का इनके बीच में, तो I mean there should not be any partiality between them, like in a normal human being and in transgender they are also a human being. We should treat like a human. Okay, and the last one is like intersex. Intersex means both. In that case a person should have both sex, like a vagina and penis. अगर दोनों एक साथ ग्रो हो जाता है किसी किसी व्यक्ति में, बहुत ऐसा काफ़ी कम परसेंटेज होता है कि किसी व्यक्ति में वेजाइना और पेनिस दोनों एक साथ ग्रो हुआ है और दोनों ठीक से ग्रो नहीं हुआ है, तो वो बहुत ही कम केसेस में होता है. तो इंटरसेक्स ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही मिनिमम 0.00 पॉइंट समथिंग परसेंटेज को मान सकते हैं, मतलब बहुत कम है. तो ये होता है. और ट्रांसजेंडर में आप जैसा कि जानते हैं कि इनमें क्या पेनिस और वेजाइना कोई होता ही नहीं है. जस्ट दे हैव ओनली द वे ऑफ यूरिनल, मीन्स सिर्फ यूरिनल का रास्ता होता है इनके में. ना ही वेजाइना डेवलप हो पाता है, ना ही पेनिस डेवलप हो पाता है. ये क्या होता है, ये शरीर के अंदर से ही, ये मीन्स बाय बर्थ दे बर्न लाइक दिस. तो इस केस में हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं. इन सारे ग्रुप को एक ग्रुप में रखा जाता है इन दिनों, जिसको बोलते हैं क्वेयर ग्रुप और LGBTI. यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस इन समवेयर लाइक इन द ऑफिशियल, इन गवर्नमेंट ऑफिशियल, इफ़ यू सी यू विल फाइंड लाइक LGBTI, अलग से एक इनके लिए विंडो बना होता है. देन आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये होमोसेक्सुअल लोगों के लिए हुआ था, जिसमें लेस्बियन, गे, बाय सेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्सुअल लोग आते हैं. एक दूसरा है, एक अनदर, जिसको टॉम बॉय बोलते हैं. टॉम बॉय क्या आता है, इट्स अ नॉर्मल गर्ल और नॉर्मल वीमेन, बट दे बिहेव लाइक अ बॉय, लाइक दे हैव ऑलवेज द डिजायर लाइक बॉय. रहते हैं लड़की, उनका बनावट भी लड़की की तरह होता है, उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट है बॉडी ऑर्गन्स का सेम होता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है. बट देयर डिजायर, उनकी इच्छाएं, उनका बिहेवियर, उनका जो भी एक्टिविटी है वो पूरा क्या एक लड़की के जैसा ही होता है. जैसे बाल छोटे छोटे करवा के रखना और कपड़े पहनना लड़कों का, तो ये एक तरह का उनके अंदर पूरा मेंटलिटी डेवलप हो जाता है. तो उनको हम टॉम बॉय की श्रेणी में रखते हैं, एंड वी जस्ट टेल देम लाइक अ टॉम बॉय, राइट. Here, see, in nowadays it's very difficult to identify, but LGBTI जो हमने ग्रुप बनाया है, इस LGBTI को दिखाने के लिए बहुत सारे कंट्री में फ्लैग्स वगैरह भी आइडेंटिफाई करते हैं. यू कैन गेट अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हेयर एंड यू कैन आइडेंटिफाई किस फ्लैग कौन से LGBTI को दिखलाता है. और LGBTI पे बहुत सारे बुक्स वगैरह भी छप चुके हैं. इस पे बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ है ये. और nowadays it is being improved like there should not be any partiality between a normal human being and LGBTI group. Nowadays you can see फर्स्ट में जो हमने बताया कि लेस्बियन, यू कैन सी हियर द फर्स्ट पिक ऑफ लेस्बियन में क्या बताया था मैंने, फर्स्ट मीन्स फीमेल अट्रैक्ट्स फीमेल. हियर यू कैन सी फीमेल अट्रैक्ट्स फीमेल. उसके बाद क्या बताया था हमने, गे. गे मीन्स व्हाट, मीन्स मैन अट्रैक्ट मैन. इसमें बहुत सारे पिक्चर भी बन चुकी है, आप इनको देखोगे आई थिंक सेक्स एजुकेशन पिक्चर में.
और हॉलीवुड पिक्चर इन्होंने बनाया है सेक्स एजुकेशन पे, यू कैन सी देयर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द सेकेंड वन इज, ये तो जानते हैं बॉलीवुड के उस्ताद, तो ये भी इस पर पिक्चर बना चुके हैं गे पे। मीन्स मैन अट्रैक्ट्स मैन, सी बनावट वही है, बट क्या है, एक लड़का लड़कियों को पसंद करने लगता है, चाहने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, तो उस सेंस में हम क्या बोलेंगे, उनको गे बोलते हैं। इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, गे की कैटेगरी में। और फर्स्ट वाला जो हमने बताया वो लड़की लड़की, मतलब बनावट सेम है, इनके फिजिकल ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स में कोई डिफरेंट नहीं है, वो एक सामान्य सी लड़की है और ये सामान्य लड़का है, इनका बनावट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही है, बट दे अट्रैक्ट टू द गर्ल ओनली। मीन्स इस सेंस में फर्स्ट वाले में लेस्बियन, लड़की लड़की को अट्रैक्ट करने लगा तो लेस्बियन, लड़का लड़का को तो गे। और दूसरा जो बताया था हमने इंटरसेक्सुअल, मीन्स लड़का लड़का को या लड़की को भी पसंद कर सकता है, लड़का लड़की को भी पसंद कर सकता है। लेकिन इस सेंस में ध्यान देने वाली बात है चीज़, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कोई एडल्ट जो होता है एक छोटे बच्चे को उठा करके किस करने लगता है, तो क्या जब वो बच्ची धीरे 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 बड़ी हो जाती है, जब उसका एज 20-25 हो जाता है, क्या वो वहाँ भी इसको इस तरीके से ट्रीट करेगा? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ओके, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन उसका आसानी से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप किन्नर, जिसमें बताया था ट्रांसजेंडर, ये देखिए ट्रांसजेंडर तो काफ़ी आप देखे होंगे और आप काफ़ी इनकाउंटर भी होंगे इन लोगों के साथ में। तो आई request you all of you, behave like a human being with them if you find them anywhere, okay? इनमें क्या होता है, जो लैंगिक प्रजनन जन्म से इनका क्या होता है, मीन्स वेजाइना और पेनिस दोनों में से कोई डेवलप नहीं होता है, सिर्फ दे हैव ओनली द वे ऑफ यूरिनल इन दैट केस। द लास्ट वन है जो इंटरसेक्सुअल से बोले हैं, इसमें क्या है कि दोनों चीज़ डेवलप हो जाता है, वजाइना और पेनिस दोनों डेवलप हो जाता है, इनका काफ़ी कम मात्रा है। तो इन सारी चीज़ों के लेकर बहुत ही इंटरनेशनल इश्यूज़ बने हैं। इसमें अपने इंडिया में, इंडिया के अलावा पार्ट ऑफ आवर कंट्री, इन अदर कंट्री लाइक दे आर फाइटिंग, दे आर fighting with the government to get the equality between the LGBTI and the normal human being. Like in India, one bill also passed. The bill was passed in Lok Sabha on 5 August 2019 by a voice vote and by the Rajya Sabha on 25 November 2019. It was signed into law by President Ramnath Kovind on 5 December, becoming the Transgender Person Protection of the Right Act 2019. ट्रांसजेंडर यदि आप हो रहे हैं, हम सपोज़ कोई किन्नर है, तो उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, उनको इक्वल दर्जा दिया जाए। समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो सभी को इक्वल दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए यह एक जो लॉ बना, ये काफ़ी बेहतरीन, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, और मैं मानता हूँ कि हर जगह ऐसा होना चाहिए। किसी भी जेंडर को, सभी जेंडर को इक्वल नज़रिए से देखना चाहिए, और हर जगह, चाहे वो जॉब के मामले में हो या कहीं भी पॉलिटिक्स के मामले में हो या समाज में, एक उनको जो दर्जा या उनको एक समान नज़रिए से देखा जाना चाहिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग अभी क्या है, एक ट्रांसजेंडर जो है एक नॉर्मल इंसान के साथ शादी भी कर सकता है, मीन्स दे बोथ कैन डू मैरिज टुगेदर। सो ये बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और at the end of this video, I would like once again to the person who behave like unhuman being with the transgender, they should not do like that. We all of us should give respect to them, and we should also try to give them job and equal, means equality. We should do equality with them, right? So I hope you have understood the sexuality and the different sexuality. Now you can easily define the sexuality of an individual, and I hope you have learned so many things from this video. I will see you in the next video. Till then, do studying and enjoy your life. Bye bye.